Recording in progress. Let's start. बेटा हम अक्टूबर नवंबर 2020 वेरिएंस 42 कर रहे हैं, ठीक है। A student investigates two different aqueous electrolytes using the apparatus shown below. याद रखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड्स कार्बन के बने हुए। Complete the table. Dilute sulfuric acid. Anode पे name of product. Oxygen. Bubbles of colorless gas. ठीक है। Aqueous copper sulfate using carbon electrode कह रहा है, तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन होगी। और कैथोड के ऊपर नेम ऑफ प्रोडक्ट इज कॉपर और ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पिंक ब्राउन सॉलिड। State the test and its observation to identify hydrogen gas. Insert the burning splinter in the gas jar. The splinter burns with the pop sound. सही है? Question number 2. When solid group 1 nitrates are heated, they decompose and give off a gas. The gas relights a glowing splinter, meaning oxygen gas की बात कर रहे हैं. Name the gas. Oxygen. A student investigates the rate of decomposition of 4 group 1 nitrates. The student heats each of nitrates separately with a Bunsen burner. The student measures the time taken for the glowing splinter to relight for each nitrate. Okay. It is important to control the amount of heat supplied by the Bunsen burner. Suggest 2 ways the amount of heat supplied is kept constant. Thermostatically controlled water bath use कर लो. बोलो yes or no? Statically controlled water bath या फिर सेम फ्लेम कलर यूज कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप यही तो लिख सकते हैं, the heating can be done from the same distance. मुख्तलिफ बात, ठीक है। Suggest a variable involving the metal nitrate that should be controlled. तो आप बताइए mass of metal nitrate ठीक है, mass of metal nitrate part B. Each experiment is repeated 2 more times. The results are shown in the table. Okay. वो कह रहे हैं experiment 1 100 150 और फिर उसके बाद क्या है बेटा आपके पास 100. तो कह रहे हैं एवरेज टाइम, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो। हाँ जी, नहीं नहीं, एक काम करें, इन दोनों यूज कर लें क्योंकि दोनों क्लोज वैल्यू है।
सेम वैल्यूज, ये तो नॉर्मलस पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसूली तौर पर सारे होने चाहिए, लेकिन देख लो आप इन तीनों को ऐड करके जरा डिवाइड बाय 3 करो। हाँ नहीं, इन दोनों का एवरेज क्या होगा 310, फिर इन दोनों का एवरेज क्या होगा 405, फिर इन दोनों का एवरेज क्या होगा 200, सही है ठीक। Use the time in the table to calculate the average time for each metal nitrate. Do not use any anomalous times. Write your answer in the table. हो गया ये? पार्ट नहीं पड़ा, सॉल्व कर दिया उठा के। Which metal nitrate decomposes the fastest? Use information from the table to explain your answer. G. वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा जिसका एवरेज टाइम सबसे कम होगा। सबसे कम एवरेज टाइम किसका है? लिथियम नाइट्रेट का। तो मेटल नाइट्रेट कौन सा है? लिथियम नाइट्रेट। और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एवरेज टाइम इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, सही है। A student is provided with solution K, which is aqueous sodium hydroxide. Guys, solution K is aqueous sodium hydroxide. The student determines the concentration of K by titration. 25 cm cube of K is transferred into the apparatus A. ये जो apparatus A है, ये volumetric flask है आपके पास। और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है 500 cm क्यूब। रिमेंबर, ये याद करना होगा आपको, ठीक है। नेम अ पीस ऑफ apparatus used to measure 25 cm क्यूब accurately. Pipette. Name the apparatus say volumetric flask. I hope आपको याद हो, रिकॉर्डिंग्स में भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 की भी होती है, 100 की भी होती है, 500 cm की भी होती है। और हम यूजुअली कब क्या यूज करते हैं 250 एंड 500। देखें यहाँ 500 लेटेस्ट पेपर्स में आ रहा है, पुराने पेपर्स में जितने हैं सब 250 यूज किया था एग्जाम में। समझ आ रही है? पुराने पेपर जितने किए उन सब में 250 था, नए पेपर जितने कर रहे हैं उन सब में 500 है। Okay, the student makes up 25 cm cube of sample K to 500 cm cube of distilled water. That's a very important statement. ठीक है, मैंने 25 cm cube pipette out किया, उसको 500 cm cube of volumetric flask में प्लेस किया, distilled water से मेकअप कर लिया। ठीक है, the student transferred 25 cm cube of L into the conical flask at 2 drops of methyl orange indicator. Okay, solution M is 0.05 mole per dm cube sulfuric acid. N is put into the burette and run into the conical flask. Guys, H2SO4 is in the burette, whereas NaOH is in the conical flask. याद रखिएगा ये बात। Why is it wrong to wash out the burette with distilled water immediately before filling it with M? भाई वॉश नहीं करते burette को distilled water से, पहले हम वॉश करते हैं burette को distilled water से, फिर हमने जिस कंपाउंड को लेना होता है उससे रिंस करते हैं to get the accurate results. समझ आ रही है बात? याद रखना ये बात। जितने एपरेटस सुन लीजिए सारे बच्चे, बहुत अहम बात है ये कि आपके पास ब्यूरेट है, आपके पास पिपेट है। इन दोनों एपरेटसेस को आप सबसे पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, क्लियर? उसके बाद इन दोनों एपरेटस को रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन से रिंस करोगे। सर आपका क्या मतलब है कि रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन से रिंस करूंगा? मिसाल के तौर पे अगर NaOH ब्यूरेट में लिया जा रहा है तो मैं NaOH को ब्यूरेट में रख के एक मर्तबा उसका पूरा सॉल्यूशन पास करूंगा, सो दैट कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस ना हो, वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना हो। मिसाल के तौर पे मैं एसिड पिपेट आउट कर रहा हूं
तो मैं उस पिपेट को उस पूरे स्पेसिफिक एसिड से एक मरतबा रन करूं ताकि उसमें वाटर का कंटेंट बिल्कुल भी ना हो। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर मैं डिस्टिल वाटर्स यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को चेंज कर देगा। Changes the concentration of acid. What is the color change of the methyl orange indicator at the end point? एल्कली के अंदर इसका कलर होता है येलो, और जब आप H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू रेड। सही है? ठीक है। The student does 3 titrations. The diagram shows part of the burettes with the liquid levels at the beginning and at the end of each titration. Okay. Initial fill कर लेते हैं 0.0 cm cube, 10.8, 20.2, चले फिर है 23.7, 34.9 and 44.5। याद रखिएगा लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 23.7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट विल यू गेट? 24. नेक्स्ट कौन सी है बेटा? 24.3। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स होंगे, राइट? यूज द टिक्ड रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ N। 24.1 plus 24.3 divided by 2। 24.2। Solution M is 0.05 mole per dm cube H2SO4. Calculate the number of moles of H2SO4 in the average volume। cm cube में 0.0500 मोल्स हैं H2SO4 के। एवरेज वॉल्यूम आपके पास कितना है? 24.2 cm cube। बताइए उसमें कितने वॉल्यूम होंगे, आई मीन सॉरी कितने मोल्स होंगे? वेट 0.00121 मोल्स। ठीक है, okay. Now the next is dilute sulfuric acid reacts with aqueous sodium hydroxide as shown. Calculate the number of moles of NaOH in 25 cm cube of L। So बेटा H2SO4 है आपके पास और NaOH है आपके पास, राइट? तो आपने करना क्या है? वन इज टू टू का रेशियो है, 0.000121 था। बताइए मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? इन 25 cm cube कितने हो जाएंगे बेटा? 0.00242 moles, right? 25 cm cube में 0.00242 moles थे। यार 0.00121 था ये। अब यहां से सही है? okay. 500 cm cube में क्या होगा बेटा? जीरो पॉइंट 0.0484 मोल्स। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 cm cube ऑफ K।
तो हम क्या करेंगे, 0.0484 मोल्स ले लेंगे, क्योंकि NaOH के अगर आपने मोल्स 500 में इतने कैलकुलेट किए तो ऑब्वियसली 25 cm³ में भी सेम ही होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ये 25 cm³ ऑफ K था ना, आपने इसको 500 cm³ में प्लेस किया और फिर डिस्टिल वाटर से मेकअप किया। तो मैंने जो 500 cm³ में मोल्स निकाले, मैं कह रहा हूँ 250 में भी तो उतने ही होंगे। मैं लिख देता हूँ ये बात, आप लिख दीजिए कि मोल्स ऑफ NaOH in 500 cm³ is equals to moles of NaOH in 25 cm³ of K। सेम हो जाएंगे? बोले yes or no? Calculate the concentration of NaOH in K। तो बेटा 25 cm³ में आपके पास 0.0484 मोल्स हैं। अगर आपने 1000 cm³ से कंपेयर किया कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो बताइए कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 1.926 मोल पर dm³। 936 मोल per dm। Between each titration, the student washed the conical flask with distilled water. Wash the conical flask with distilled water. A second student repeats the experiment but uses L instead of water to wash the conical flask. State and explain whether the second student titration volume of dilute sulfuric acid would be smaller, larger, or unchanged compared to the first student volume of the dilute sulfuric acid. Larger. मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि ब्यूरेट और पिपेट को आप सबसे पहले क्या करते हो? डिस्टिल्ड वाटर से वॉश, और फिर उन दोनों एपरेटसेस में जो कंपाउंड आपने लेना होता है या जिन कंपाउंड को मेजर करना होता है, उनसे उन रिस्पेक्टिव कंपाउंड से रिंस करते हो। कॉनिकल फ्लास्क है या मेजरिंग सिलेंडर है, आप उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करोगे, लेकिन उसको कभी भी रिंस नहीं करेंगे। उसने रिंस कर दिया तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम होगा H2SO4 का वो बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? पहले उसने डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया, फिर उसने H2SO4 से रिंस किया, फिर उसमें H2SO4 डाला, तो पहले ही H2SO4 कुछ ना कुछ होगा ना, और फिर आपने ऐड कर दिया तो वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा। हम कभी भी मेजरिंग सिलेंडर और कॉनिकल फ्लास्क को वॉश तो करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से, रिंस कभी नहीं करते। और अगर रिंस कर दिया जैसे उसने स्टूडेंट 2 ने किया है, तो वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाएगा? ज्यादा। More alkali in the conical flask। ठीक है, more alkali in the conical flask। You are provided with a mixture of copper to carbonate and carbon. Both copper to carbonate and carbon are solids. They are both insoluble in water. Copper to carbonate reacts with dilute sulfuric acid and forms an aqueous solution. Carbon does not react with dissolve or dissolve in dilute sulfuric acid. Okay. Use this information to plan an experiment to produce a sample of pure carbon from the mixture. You are provided with a mixture of copper to carbonate and carbon as well as dilute sulfuric acid and distilled water. You have access to the apparatus normally found in school chemistry laboratory. No other chemicals required. Your plan should include the details of how separate the carbon, purify the carbon. Chemical equations are not required. Okay. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? Dissolve the mixture in distilled water. ठीक है, कार्बन डिसॉल्व नहीं होगा और कॉपर टू कार्बोनेट भी डिसॉल्व नहीं होगा।
add sulfuric acid in the mixture and heat the mixture gently. And heat the mixture gently till the point when no more gas is given off. जब गैस बंद हो जाएगी तो फिर आप उस मिक्सचर को फिल्टर करोगे, कार्बन जो है वो रेजिड्यू होगा, वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर, और जब रेजिड्यू आप डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेंगे तो फिर उसको ड्राई करेंगे ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है। मुझे लगता है कि ना फ्रॉम 2018 उसने एटीपी को काफी श्रिंक कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। पहले 10 आते थे, अब सिर्फ 6 देता है, राइट। बट उसने क्या किया है, उसने प्लानिंग का एक क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। और प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने बहुत डिटेल से केमिस्ट्री को पढ़ना है। अगर आपने ऊपर से केमिस्ट्री पढ़ी, सतही तौर से केमिस्ट्री पढ़ी, आपका ये जो क्वेश्चन होगा ना एटीपी का, ये हैंडल नहीं होगा आपसे। और आप नोट कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाता है हमेशा आपसे, एग्जाम्पल मुसलसल चेंज होती है। आज लेकिन कॉपर टू कार्बोनेट कार्बन दे दिया, इससे पहले सोडियम क्लोराइड सैंड दिया था, समझ आ रही है बात। उससे पहले कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड दिया था। हर क्वेश्चन के अंदर चेंज कर रहा है वो पैटर्न, मीनिंग यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू राइट दैट। बेसिकली आपने बहुत बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। R is dissolved in water. The solution is divided into 3 parts of the solution. A colored solution is formed. तो आप लिखेंगे R contain transition metal ion to the portion of the solution from A aqueous ammonia is added until a change is seen. R contain chromium 3 plus and Fe2 plus ions. तो बेटा green precipitates, फिर वो कह रहे हैं in excess of aqueous ammonia is added to the mixture. इन दोनों की बात करेंगे, दोनों अवेलेबल हैं, क्रोमियम एंड 3 प्लस आयंस। तो आप कहिए ग्रीन प्रेसिपिटेट्स रिमेन्स इनसॉल्युबल। To the portion solution from A aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen. Chromium and Fe2 plus ions contain, meaning grain precipitates again. An excess of aqueous sodium hydroxide is added to the mixture from C. R contain chromium 3 plus ions. Green precipitates dissolve to give a green solution. The green precipitates are soluble, giving green solution. ठीक है। The mixture from C2 is warm and the gas formed is tested with damp red litmus paper. The gas turns damp red litmus paper blue. तो आप बताएंगे अमोनियम आयंस प्रेजेंट। ठीक है, एक चीज पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 कैटायंस है, 1 एनायन है। ओके, उसके बाद वो नेक्स्ट कह रहे हैं R contains sulfate ions.
to the portion from solution A at barium nitrate solution. सल्फेट आयंस हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे बेटा, सही है। Next, a student investigates the temperature rise when different masses of magnesium are added to dilute hydrochloric acid. In each experiment, the student pours 100 cm³ of dilute acid into the beaker, place thermometer into the beaker, record the temperature of the acid, known mass of magnesium to the acid, and stir the mixture. Record the highest temperature reached. Okay. The thermometer, the temperature rise with each mass the temperature rise with each mass of magnesium is less than expected. Give one reason for this. Beta, heat loss होगा यहाँ से क्योंकि beaker open है. Heat loss from the top of beaker. State two changes that can be made to the apparatus so that the temperature rise for each mass of magnesium is closer to the expected value for this. तो बेटा आप insulation use कर दीजिए. और lagging, use insulation और lagging. Lagging मैंने पहले भी बताया cotton wool होता है. और दूसरा क्या use कर सकते हैं हम? यूज पॉलीस्टाइरीन कप. कल की क्लास में बताया था कि बीकर की बजाय पॉलीस्टाइरीन कप यूज करें या प्लास्टिक कप यूज करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, the diagram shows part of the thermometer stand giving the highest temperature recorded using different masses of magnesium. Okay, ये 0.2 ग्राम, ये 0.3 ग्राम है, ये 0.4 ग्राम है, ये 0.5 ग्राम की रीडिंग है। तो 0.2 ग्राम के ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा, जरा काउंट रीड कीजिएगा। 25.2, फिर आपके पास क्या है 0.3 पे 27.9, 27.9 है बेटा, ये देखिए ना, ये लाइन है। फिर क्या है 30.6, और फिर 0.5 पे क्या है 32.4। सही है, डिफरेंस निकालिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिफरेंस आएगा। तो जल्दी से करके देखिए बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ रहा है 27.9, हाँ बेटा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है 2.6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो,
5.3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 8.0, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 9, ठीक है। इनिशियल कहां पर है ये हॉल बल्ब, एक मिनट, एक मिनट, हाँ बेटा, टेम्परेचर राइज डिटरमिन करने के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनिशियल टेम्परेचर से। सो बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बताइए कितना आ रहा है 5.2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर दोबारा से सब्ट्रैक्ट करें और नेक्स्ट 12। नाउ इट मेक्स सेंस, ठीक है। ये इनिशियल टेम्परेचर, ये नेक्स्ट टेम्परेचर। What evidence in the table shows that the reaction is exothermic? Temperature rise? Yes or no? Temperature rises, exothermic reaction है। इसके बाद वो कह रहे हैं plot the temperature rise against mass of magnesium on the grid. Draw a straight line through the first 4 points, ठीक है। Draw another straight line through the last 3 points. Extend both the straight lines so that they will cross. ये आ गई, ठीक है, ये बन गया आपका। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे। Use your graph to answer the question. In each case, assume that the magnesium is added to 100 C into dilute hydrochloric acid at 20 degrees Celsius. What is the temperature rise when 0.35 gram of magnesium is used? G. जब 0.35 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम यूज किया है तो बताइए टेम्परेचर राइज कितना होगा। हाँ जी, कितना है 9.2। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड। 0.15 ग्राम अगर आपने यूज किया तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा 4 है। फिर उसके बाद है what mass of magnesium is used to give a highest temperature of 26 degrees Celsius. 26 degrees Celsius. 26 degrees Celsius के ऊपर highest mass 26 degrees Celsius. Degrees Celsius. 26 degrees Celsius. How come? मैं मिसिंग कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। ये चेक करना है। हाँ 26 ग्रिड में है नहीं। तो बेटा वो तो मैंने बनाया है ना, ये बना हुआ, ये बना हुआ। नहीं वो तो सही बना हुआ बेटा, वो तो आंसर है, बट ये 6 डिग्री सेल्सियस है या 26, ये इशू है।
What is the highest temperature when 0.15 gram of magnesium is used? 0.15 कितना आ रहा है बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियली था और यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ पर 3.9 हो रहा है। फोर क्यों बोला था फिर? ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इनिशियल 20 था, उसमें कितना ऐड हो रहा है बेटा? 3.4। हाँ, ये इनिशियली गिवन है और ये आपने कहां से डिटरमिन किया है? फ्रॉम ग्राफ। एड 0.15 gram, ठीक है। What mass of magnesium is used to give a highest temperature of 26 degrees Celsius? G। तो इनिशियली मेरे पास कितना था? 20 और आपके पास कितना है? 23.9। नहीं, कितना आएगा? 0.23 ग्राम। ये कैसे आया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उससे 6 ग्राम बोला था। अच्छा, 26 20 ये हो जाएगा राइट? ये आ जाएगा 0.23। तो इनिशियली मेरे पास कितना है? 20 और तो 0.23 आ रहा है। 47 कैसे आ रहा है? What is the minimum mass of magnesium that reacts with all? तो रिलेट नहीं कर पा रहा। देखो, I can't read the graph. तुम लोग देखो। Recording in progress. चलो, 0.47। आप लोग बेटा रीड कर लीजिएगा, हाँ मुझसे तो रीड नहीं हो रहा है। यूज योर आंसर टू E4 to calculate the number of moles of magnesium that reacts with 100 cm2। तो बेटा ये हो जाएगा moles equals to 0.47 divided by 24, राइट? चलिए बताएं कितने मोल्स आ रहे हैं? 0. You sure? 0.47 divided by 24। Magnesium reacts with hydrochloric acid. Calculate the concentration in mole per dm cube of hydrochloric acid. Okay. बेटा मैग्नीशियम है आपके पास और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। आपने अभी कितने मोल्स कैलकुलेट किए भैया मैग्नीशियम के? 0.0196। बताइए मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे?
0.392, राइट। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 cm³ से कंपेयर कर देता हूं, बताइए कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 0.392, यहाँ लिख दीजिए 0.392, सही है भाई? We are done with